Introduction to dictionaries. The data type dictionary falls under mapping. Means if you are asked that what is used for mapping, you will write one word answer, or MCQ is asked, you will write dictionary. So data type dictionary falls under mapping. It is a mapping between a set of keys and a set of values. इसमें key value का set रहता है, keys and values. The key value pair is called an item. Okay, all these are your MCQ question. If they will ask you what is called, this key value pair is called dash, you will write here item. A key is separated from its value by a colon. So this is again one MCQ question, that the key and the value is separated by dash. What is the answer? Colon in a dictionary. And consecutive items are separated by commas. So all the key value pairs, in between a key and value colon is used, and in between the items comma is used. Items in dictionaries are unordered, so we may not get back the data in the same order in which we had entered the data initially in the dictionary. Clear? तो इसको unordered set of data रहते हैं. Now how to create a dictionary? Creating a dictionary. To create a dictionary, the items entered are separated by commas and enclosed in curly braces. So these you have to keep in mind. This curly braces is asked in MCQ and it is separated by commas. Each item is a key value pair separated through colon. The keys in the dictionary must be unique. So this you have to keep in mind, that it should be unique. Keys are always unique in a dictionary. Repeated नहीं हो सकता है. Suppose your roll numbers, you have unique roll numbers. So I can create a dictionary using your unique roll number, unique admission number, and so on. And should be of any immutable data type, that is number, string or tuple. So keys में तुम क्या क्या यूज कर सकते हो? कोई भी immutable data type तुम keys में डाल सकते हो. कौन कौन से immutable data type? Numbers, strings और tuple. जो mutable data type है list, वो नहीं डाल सकते हो keys में. The values can be repeated and can be of any data type. Values are mutable. ठीक है? इसको याद रखना. Keys of a dictionary are immutable. Values of a dictionary are mutable. Mutable का मतलब है we can change the values, but we cannot change the keys. Now, Dict1 is an empty dictionary. So here you can see Dict1 equals to curly brace. Now this is empty. So it will show here an empty dictionary. Now if you are creating a dictionary with the name of the students and their marks, so when you will type that dictionary name, or you will use print command in the script mode, so it will show the details of that dictionary. Now accessing items in a dictionary. How to access each and every item of a dictionary? We have already seen that the items of a sequence, string, list and tuple are accessed using a technique called indexing. So till now we were learning indexing. जब भी लिस्ट के एलिमेंट को, स्ट्रिंग के एलिमेंट को यूज एक्सेस करना होता था, हम उसका 0, 1, 2 फॉरवर्ड इंडेक्स और रिवर्स इंडेक्स में -1, -2 करके हम एक्सेस करने के लिए यूज करते थे. लेकिन डिक्शनरी में कोई फॉरवर्ड इंडेक्स, रिवर्स इंडेक्स नहीं होता है. बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 करके कुछ भी नहीं होता है. डिक्शनरी में हमने जो दिया हुआ है कीज, उसी को यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए. ठीक है? So indexing is not used in dictionary. The items of a dictionary are accessed via the keys rather than via their relative positions or indices. तो keys से हम लोग एक्सेस करेंगे, उसका पोजीशन या इंडेक्स का कोई इसमें रोल ही नहीं. Each key serves as the index and maps to a value. हर एक की उसका इंडेक्स की तरह काम करेगा और उसका जो वैल्यू है उसका एक मैपिंग, ये मैपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसी से हम सर्च करेंगे, कीज से हम लोग सर्च करेंगे. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ अ डिक्शनरी रिटर्न्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन की. तो ये एक डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है जिसमें की मोहन है, उसका वैल्यू 95. So like this. Now if I want to display the value of any key
हाउ टू राइट इट, द नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट द की। ठीक है, जब हमको प्रिंट कराना है, एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, हम उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी की है वो लिखेंगे। की अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, की अगर न्यूमेरिक नंबर है तो नंबर लिखेंगे, की अगर टपल है तो टपल लिखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो वैल्यू जो है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल इंटीजर वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू है वो उसको डिस्प्ले करेगा। सेम थिंग हियर, डिक्शनरी नेम संगीता, so marks of Sangeeta is printed using unspecified key. Suppose a key is not there, it will show key error. ठीक है, अब हम लोग एरर्स को भी करेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर में हम लोग का ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स ये डिटेल में आने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये की यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे खाली मोहन, राम, सुहेल और संगीता 4 की है और हमने यहाँ पे श्याम डाला। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे की एरर आ रहा है क्योंकि श्याम नाम का कोई की तो है ही नहीं। In the above examples, the key Ram always maps to the value 89, key Sangeeta always maps to the value 85, so the order of items does not matter. If the key is not present in the dictionary, we get key error. ये याद रखना, अगर present नहीं है तो key error display होगा। Membership operation. The membership operator in checks if the key is present in the dictionary and returns true, else it returns false. जैसे हम चेक करते थे लिस्ट में, सेम यहाँ पे अगर इन यूज करोगे कि क्या ये जो है सुहेल ये इन डिक्शनरी है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इन और नॉट इन इसमें भी यूज होता है, जैसे लिस्ट में यूज होता है, स्ट्रिंग में यूज होता है, वैसे ही डिक्शनरी में भी यूज होता है। तो यहाँ पे दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, इन एंड नॉट इन। नाउ सुहेल नॉट इन डिक्शनरी, सो दिस इज फॉल्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस। तो इन में क्या होता है, अगर है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा, और नॉट इन में जस्ट उल्टा होता है, नॉट इन में अगर है तो फॉल्स होगा और अगर डिक्शनरी में नहीं है तो ट्रू होगा। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. Dictionaries are mutable, which implies that the contents of the dictionary can be changed after it has been created. पूरे डिक्शनरी को बनाने के बाद हम उस पूरे को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कीज आर इम्यूटेबल, ये तो पता ही है, कीज को हम अलग से उठा के चेंज नहीं कर सकते। कोई प्रोसेस वैसे दिया भी नहीं हुआ है, खाली वैल्यूज चेंज कर सकते हो और या फिर पूरे डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो। नाउ एडिंग अ न्यू आइटम, ये बहुत इजी है। अब ये जो है एडिंग अ न्यू रो, एडिंग अ न्यू आइटम, ये अच्छे से समझ लो बिकॉज इन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस टर्म ओनली you will be asked this question, how to add a new item in a dictionary. कुछ नहीं करना है, सपोज एक डिक्शनरी गिवन है, ठीक है, अब उसमें ऐड करने के लिए हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वो न्यू की को लिखेंगे, इक्वल्स टू वैल्यू डालेंगे। जब उस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो ये लास्ट में ऐड हो जाएगा, देखो लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, modifying an existing item. If you are asked to modify any item, same way जैसे तुम ऐड करते हो वैसे ही हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में उस की को लिखेंगे, और जैसे सुहेल का यहाँ पे 92 था, हमको चेंज करके 93.5 करना है, तो इक्वल्स टू न्यू वैल्यू डाल देंगे। जब न्यू वैल्यू डालेंगे फिर से डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे तुमको ये न्यू वैल्यू के साथ दिखेगा। Traversing means to access each and every element, and if you want to, after accessing, you can display or you can do whatever task is being given to you. We can access each item of the dictionary or traverse a dictionary using for loop. कैसे करते हैं, जैसे लिस्ट में या स्ट्रिंग में करते थे, सेम वही मेथड है, for key in dict1। अब इसमें क्या दिख रहा है कि सारे कीज हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो खाली डिक्शनरी का नाम लिखेंगे तो सारे कीज हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब प्रिंट हो रहा है तब प्रिंट कराते समय हमने यहाँ पे
ऑफ की भी लिखा है तो उसके वैल्यूज भी प्रिंट हो रहे हैं, कीज के साथ उसके वैल्यूज भी प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे आउटपुट में भी आ सकता है, तुम्हारे प्रोग्राम्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन दिया रहेगा, आउटपुट पूछा जाएगा, तो इसका ये जो आउटपुट दिख रहा है ये आउटपुट लिखोगे, या तो ऑप्शन एमसीक्यू में दिया रहेगा। ठीक है, तो कैसे आउटपुट प्रिंट हो रहा है, डिक्शनरी के जो वैल्यूज एक एक करके लेते जा रहा है वैल्यू, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होते जा रहा है, तो ये अच्छे से समझ लोगे। नाउ नेक्स्ट इज फॉर की एंड वैल्यू बोथ यू आई वांट टू टेक। सपोज तुमको की भी लेना है, वैल्यू भी लेना है इन dict1.items. Now these are your methods, so this we will do in detail afterwards. तो इसमें डॉट आइटम्स करोगे तो की जो है वो की के पास आ जाएगा, वैल्यू जो है वैल्यू के पास आ जाएगा, और तुम की कोलन वैल्यू करके डिस्प्ले करा सकते हो। आगे यहाँ तक समझ में? इसके प्रोग्राम्स हम अभी कर लेते हैं, डिक्शनरी के सारे प्रोग्राम्स। इसके बाद हम डिक्शनरी का नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी के सारे मेथड्स करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस। पूरा लेंथ अगर डिस्प्ले कराना है तो लेन यूज करके डिक्ट से पूरे डिक्शनरी को लेना है। कीज को अगर खाली एक्सेस करना है, कीज खाली कीज को डिक्ट डॉट कीज करेंगे, डिक्ट डॉट वैल्यूज करेंगे, खाली वैल्यूज। आइटम्स करेंगे तो कीज वैल्यूज पूरे पेयर में आ जाएंगे। अब इसका आउटपुट ध्यान से देखो कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजन वाला है। इसमें करेक्ट ऑप्शन एक में डाल के बाकी ऑप्शंस में कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे राउंड ब्रैकेट, कहीं पे राउंड ब्रैकेट के जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट, कहीं पे सिंगल कोट्स हटा देंगे तो बहुत कंफ्यूजन लगता है। इसलिए आउटपुट को ध्यान से देखोगे कि किस फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट हो रहा है। जब हम लोग dict1.values दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि एमसीक्यू में सेम आउटपुट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पहले राउंड ब्रैकेट है फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, सेकंड ऑप्शन में पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट, थर्ड ऑप्शन में दोनों में राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अच्छे से इसको एक बार देख लोगे। नाउ वी विल गेट द वैल्यूज, एनी वैल्यू इफ यू वांट टू गेट इट, यू कैन अपडेट द वैल्यूज, you can clear the dictionary and make an empty dictionary, you can delete any value. So these in detail we will do with example. हम लोग आइडियली में एग्जाम्पल्स के साथ इसको करेंगे। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी, कैसे उसके वैल्यूज को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। सपोज इसमें दिया है कि क्लास का एक रिपोर्ट बनाना है, एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस बनाना है, जिसमें तुमको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल IP students you have to keep. So like this the programs will be there. So here you can see the questions. In practical exam you will get these questions which you have to execute it and you have to show the output. Clear? So in detail we will do in our next class. So this is your dictionary. So I think you have understood the difference between list and dictionary.